Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sadia Nasim, your biology teacher from Beria Foundation College, Nashara Fruit. Today we are reading the topic of meiosis, class 9. Okay. In my previous lecture, I have told you about the mitosis. Mitosis was the type of division in which single cell divides into two daughter cells. Today is meiosis. Meiosis is a type of cell division in which single cell divide into four daughter cells and number of chromosome becomes half. A single cell. What is this single cell called? This is the parent cell. Parent cell will divide into how many daughter cells? 1, 2, 3 and 4 daughter cells. Okay. With the number of chromosome will become half. N number of chromosome here and here and here and here. Okay. With the number of chromosome will become half. A single cell will divide into 4 daughter cells and number of chromosome becomes half. Same is the reason meiosis is also known as reduction division. What is the another name for meiosis? Reduction division. Because number of chromosome becomes reduced in this type of division. In animals, meiosis takes place in germ cell to produce the gametes, and the sperm and egg, where in plant it takes place in spore mother cells to produce the spores. meiosis कहाँ होती है? एनिमल्स में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है. दोनों में क्या होता है? एनिमल्स में एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स कौन कौन से होते हैं? एग एंड स्पर्म. और प्लांट में कहाँ होगी यहाँ ये meiosis? इन द स्पोर मदर सेल टू प्रोड्यूस द स्पोर्स. ओके. ये दोनों क्या है? These cells are formed at the time of sexual reproduction. तो meiosis जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर होती है. Now events of meiosis. meiosis के इवेंट्स क्या क्या हैं? meiosis को भी माइटोसिस की तरह meiosis जो है वो भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम लोग meiosis को क्या करते हैं? डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं. दैट इज meiosis 1 and meiosis 2. Now further stages of the meiosis 1 are the prophase, number 1 prophase, number 2 metaphase, number 3 is anaphase, number 4 telophase. Here is prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. In the same way, meiosis 2 is divided into 4 steps, that is prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. Prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. Okay, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. Now we are going to discuss the steps one by one. First of all, meiosis 1. In prophase 1, first step of meiosis, okay, it is very much similar to the mitosis, but there are with some differences. Prophase 1 can be divided into further 5 subgroups, that are leptotin, zygotin, pectin, diplotin and diakinesis. Leptotin, number 2 pectin, number 2 is zygotin, this is number 3. Number 2 is zygotin, diplotin and
डायाकाइनेसिस। ओके, सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट, प्रोफेज 1 जो है वो मियोसिस 1 का लॉन्गेस्ट फेज है। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच सब स्टेज वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज द लेप्टोटीन। ड्यूरिंग दिस सब स्टेज, chromosome network break into specific number of long thin beaded thread, and each thread has two morphologically similar leptin is called the homologous structure। chromosomes क्या होगा? homologous structures बनाएंगे, दो chromosomes एक जैसे similar। ओके, look at this, almost similar, ये होमोलोगस। ठीक है, होमोलोगस जिन जो देखने में बिल्कुल सिमिलर हों। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दीज आर टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो सिमिलर क्रोमोसोम्स क्या करेंगे? पेयर बना लेंगे। ओके, इन द zygote, इन दिस सब स्टेज, होमोलोगस क्रोमोसोम विच कम्स फ्रॉम द मदर एंड फादर आर attracted toward each other and lengthwise pairing take place. The pairing of homologous chromosome known as synapses, while the paired homologous chromosome known as bivalent zygote। सेकेंड स्टेप ये वाला zygote, जिसमें ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि डिफरेंट पेरेंट्स से, एक मदर से और एक फादर से आएगा, ये क्या करेगा? आपस में पेयरिंग करेंगे, मिल जाएंगे। एक जैसे क्रोमोसोम लॉन्गिट्यूडली, ये लॉन्गिट्यूड है इसका, लॉन्गिट्यूडनली एक दूसरे के साथ पेयर्स बना लेंगे। फॉर एग्जांपल, ह्यूमंस के अंदर अगर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 46, तो कितने पेयर्स बनेंगे? 23 पेयर्स बन जाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। देन कम टू द थर्ड स्टेज, दैट इज पैकेटिन। द सिनेप्टिक फोर्सेज और अट्रैक्शन बिटवीन ईच बाइवेलेंट decrease and the chromosome uncoil and separate. Separation is however incomplete and pairing homologous in contact with each other one or more points called the chiasmata। अब ये जो क्रोमोसोम जिन्होंने पेयरिंग की है, ये थोड़ा थोड़ा अनकॉइलिंग होगी, लेकिन इनकी अनकॉइलिंग कंप्लीट नहीं होगी। ये क्रोमोसोम क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कुछ पॉइंट्स पे आके एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। इसको हम कहते हैं chiasmata formation। Each homologous chromosome split longitudinally except in the centromere region. Now each bivalent is composed of 4 chromatids and therefore known as bivalent tetrad। अब हर क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमेयर के पॉइंट के अलावा बाकी जो पॉइंट्स हैं वहाँ से इनकी अनकॉइलिंग होगी और ये बाइवेलेंट टेट्राड बन जाएंगे। 1 2 3 4, टेट्रा 4, तो बाइवेलेंट टेट्राड जिसमें 4 क्रोमेटिड्स आ गए। Now diplotin, homologous chromosome exchange their parts of chromatids at the chiasmata। अब जहाँ पे इनकी क्रॉसिंग ओवर हुई है वहाँ पे क्या करेंगे? ये दोनों क्रोमोसोम अपने पार्ट्स एक्सचेंज कर लेंगे। कुछ पार्ट ये क्रोमोसोम इसको दे देगा, कुछ इसके ले लेगा। ठीक है, एंड होमोलोगस क्रोमोसोम का ये जो प्रोसेस जिसमें एक्सचेंज हुआ है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर हो गई यहाँ पे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एमसीक्यूज में क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर हो जाती है जिसमें क्रोमोसोम एक दूसरे से अपने सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं। एंड लास्ट स्टेज में, ड्यूरिंग द डायाकाइनेसिस, एट दिस सब स्टेज द अनकॉइल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। ओके, अब डायाकाइनेसिस में क्या होगा? वो सारी स्टेप्स जो प्रोफेज 1 में होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? डिसअपियर हो जाएगी। और उसके अलावा क्रोमोसोम की कॉइलिंग होगी, माइटोटिक अपरेटस जैसे कि स्पिंडल फाइबर्स वो बनेगा, एंड क्रोमोसोम ये जिन्होंने क्रॉसिंग ओवर की थी ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ chiasmata इज नोन एज टर्मिनलाइजेशन। एट द एंड ऑफ द डायकाइनेसिस, क्रोमेटिड्स स्टिल रिमेन कॉम्पैक्ट एट द एंड्स। ओके, क्रोमेटिड्स जो हैं वो इसी तरह कॉइल फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जब ये सेपरेट होते हैं, सेपरेशन के बाद एक क्रोमोसोम
दूसरा क्रोमोसोम, लेकिन वो पॉइंट जहाँ पे इनकी क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहाँ पे ये अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लेंगे कुछ, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, सेगमेंट एक्सचेंज करने का फ़ायदा क्या होगा, इससे वेरिएशन आएगी, न्यू जनरेशन, क्योंकि क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम पर इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो इनहेरिट होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। जब क्रॉसिंग ओवर होगी यानी कि सेगमेंट एक्सचेंज होंगे तो थोड़ी सी जीन्स चेंज हो जाएगी। यही वजह है कि एक ही फैमिली के मेंबर्स सेम पेरेंट्स होते हुए, मदर और फादर सेम है, लेकिन उनके बच्चे जो हैं कुछ तो उनमें रिजेंबलेंस है लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। रीज़न क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है, हर बार कोई ना कोई चेंज आ जाता है। तो इट वाज क्रॉसिंग ओवर और फर्स्ट वीडियो ऑन मियोसिस। मियोसिस थोड़ा लंबा स्टेप है, इसलिए लंबा प्रोसेस है, इसलिए मैं इसको एक ही वीडियो में नहीं कंप्लीट करूंगी। इसके लिए मैं आपके लिए अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी। ये हमारा पहला स्टेप था। आपका होमवर्क क्या है, आपको यू हैव टू डिफाइन मियोसिस, मेक अ की फॉर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मियोसिस। फिर आपको क्या करना है, राइट ए नोट ऑन क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, आपको इस पर एक नोट लिखना है कि क्रॉसिंग ओवर क्या होती है। जो नेक्स्ट स्टेजेस है, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।